Good morning class. Today we are going to study 8085 microprocessor architecture. So we know that it is a 8-bit general purpose microprocessor. MUP stands for microprocessor. It is capable of 64 kilo of memory. So we will let us see how we have calculated this 64 kilobyte of memory. Now it is a 40 pin device. Now that microprocessor chip contains total 40 pins. Now it can operate at 3 megahertz of clock, and so these are the general specifications. In 40 pins there are some number of output pins and some input pins. So I think 27 pins are output pin and 13 pins are input pin. Now this is a typical pin diagram. Now this is a pin diagram. Now it is showing all the pins, what are their names. So you can see there is from 1 to 40 there are total pins. As earlier in the slide we have seen that there are 40 pin. It is a 40 pin device. Now AD0 to AD7 and A8 to A15. So microprocessor has a 16-bit of address. So this AD and A series, AD0, AD1, AD2, AD3 till AD7 and plus A8 to A15, these comprise of address bus. Now address bus has a size of 16-bit and these pins are from AD0 to A15. Now in this AD, why there is a two separate name? Why it is not AD0 to AD15? Why it is AD0 to AD7 and then A8 to A15? Now we are using AD0 to AD7 as a address bus as well as data bus. We are using a data bus is of 8-bit. Now there are two things. Address is of 16-bit and data is of 8-bit. So address bus uses 16 pins and data 8. So how we are using both address and data for same pin can be used as a address and data. We will see in further slide how it is done. So these AD0 to AD7 are commonly used for both purposes, for address also and for data also, and from A8 to A15 it is a permanent part of address bus. So there should be clear that there are two types of buses, address bus and data bus. Data bus is of 8-bit and address bus is of 16-bit, because address is of 16-bit. In 8085 address is of 16-bit and data is of 8-bit. So you have to make note of it. Now there are other pins also, like address latch enable. Now this address latch enable is used for, as I told you, that AD0 to AD7 it is used as address bus, and when address is not going it is used as a data bus. So who will decide whether it will be used as a address bus or it will be used as a data bus? Address latch enable decide when these wires or these pins are used for address and when it will be used for data. Now other is read and write, input output operation. So all these pins, with the combination of these pins we decide how the microprocessor 8085 will function. Now these pins help you. So there are a few pins here. These are known as interrupts. There are 5 hardware interrupts. We will study in detail. So initially you must know that you must be familiar with the pins. So there are 5 interrupt pins: trap, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 and INTR. So INTA. So you must be familiar with this name. There are 2 clock pins, X1 and X2, where we give the crystal frequency. And so this is basically, you have to remember when sometimes it is asked in paper that you have to draw the pin diagram. So it's a pin diagram of microprocessor 8085. There are 40 pins in total. Now you can see there here
Now it's a somewhat reformed diagram. So you see here high order bus. High order bus, it was from A8 to A15. Higher order bus. Remember, address bus was of 16 bit. So these 8 bits are higher order address. What will be the lower? A0 to A7. Where it is used? It is used in AD0. Pardon? So lower order, it is AD0 to AD7. And higher order, it is A8 to A15. So these AD0 to AD7, they are acting as a lower order address bus as well as data bus, and these are purely higher order bus. It is 8. So you can see here higher order bus and multiplex. Now it is like when multiplexing is when we have to use that as a data bus and when we have to use as an address bus. Now here interrupt. So it is basically a more reformed diagram which was earlier. Here we are applying clock. Clock decides the timing of operation. You know, when you will come to see further programs. So 8085, how fast it is, how it is decided with the clock frequency. The clock frequency, because frequency is equal to 1 upon time. So if we have a higher frequency, it means the response time is very low. So it's a fast device. So this diagram is more or less same. Moving towards the system bus. Now there are 3 types of buses we know: address bus, data bus and control bus. So address bus is of 16 bit because address used in 8085 microprocessor is of 16 bit. Data bus is of 8 bits. Okay, so address bus is a unidirectional because only we can send the address from microprocessor to memory side. So always we will be sending that address. It has one direction only, but data, we can give the data to microprocessor, we can take the data from microprocessor. Earlier in classes you have seen that diagram, that data was a bidirectional thing and address bus was a unidirectional thing. Now control bus, it controls the 3 things: it synchronizing signals, timing signals and control signals. So control bus, earlier I have told what we are controlling. We are controlling the what type of operation in 8085 we have to perform. So address bus is for address, memory location. We are identifying which memory location we have to go. I have told you that in memory में बहुत सारा इंस्ट्रक्शन सेव्ड है, तो हमें वहाँ पर कैसे जाना है? एड्रेस बस से. एड्रेस बस पे क्या होगी? एड्रेस होगी जो उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से उठा के लाएगी. ये यूनी डायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में जाएगा. डाटा बस बाई डायरेक्शनल है क्योंकि हम डाटा ले भी सकते हैं और डाटा दे भी सकते हैं. लेते कहाँ से हैं हम? इनपुट डिवाइसेस से, और कहाँ पर देते हैं हम? आउटपुट डिवाइसेस में. कंट्रोल बस क्या कर रही है? ये इट इज कंट्रोलिंग ऑल द टाइमिंग सिग्नल्स एंड कंट्रोल सिग्नल. मीन्स कि कौन सा ऑपरेशन होना है, रीड ऑपरेशन, राइट ऑपरेशन होना है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होना है, मेमोरी ऑपरेशन होना है. तो ये सब कुछ कौन कंट्रोल कर रहा है? इट इज कंट्रोल बाय अ कंट्रोल बस. एड्रेस बस की साइज कितनी है? 16 बिट. डाटा बस की साइज कितनी है? 8 बिट. थोड़ा सा डाटा बस एड्रेस बस को और समझते हैं. 16 बिट. If I draw 16 bit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. Now it is 16 bit. So इसमें एड्रेस होगा, जिस भी मेमोरी का एड्रेस, जहाँ पूरी मेमोरी क्या है? ऑर्गेनाइज्ड वे में है. सो जैसे हमारे कॉलोनी में घर होते हैं तो सभी घरों के एड्रेसेस होते हैं. सिमिलरली मेमोरी में कौन सा इंस्ट्रक्शन कहाँ सेव्ड है ये कैसे पता चलेगा? विद द एड्रेस. और एड्रेस कितने बिट का होता है? 16 बिट का होता है. सो 16 बिट का एड्रेस होता है, तो कुल कितने एड्रेस बन सकते हैं? अगेन परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है. जैसे हमने इंस्ट्रक्शंस में देखा था कि डाटा अगर 8 बिट का है तो कुल कितने 8 बिट के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? दैट वाज 2 power 8.
Now in similar way, if I want to ask कि 16 बिट में कितने टोटल डिस्टिंक्ट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है, तो हर एक पोजीशन पे कितनी पॉसिबिलिटीज है? 2 2 आइदर 0 और 1, तो टोटल कितना होगा? इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2 फॉर 16. इज इट क्लियर? 2 की पावर 16 यही होंगे डिफरेंट कॉम्बिनेशन डिस्टिंक्ट. अगर हर एक पोजीशन पर 2 ही बिट आ सकते हैं 0 और 1, तो अगर 16 बिट के हमको डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाने हैं तो टोटल कितने कॉम्बिनेशंस आएंगे? इट विल 2 की पावर 16. ओके, सो 2 की पावर 16 कैन बी रिटन एज 2 पावर 6 इंटू 2 की पावर 10 और 64 किलो. सो मेमोरी में कितने एड्रेसेस हो सकते हैं? मेमोरी में मैक्सिमम, अगर 16 बिट का एड्रेस है, अगर 16 बिट का एड्रेस है, मतलब आप जैसे देखो, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि केवल एक घर है, एक कॉलोनी है जिसमें सभी मकान 3 डिजिट के हो सकते हैं. मकान के जो नंबर्स होंगे वो 3 डिजिट के हो सकते हैं. तो क्या क्या मकान नंबर होते हैं? अगर स्टार्ट करते हैं 000, फिर 001, मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं? 999. तो टोटल नंबर ऑफ घर कितने हो सकते हैं? 999 ही ना. एड्रेस रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, एड्रेस रिस्ट्रिक्ट कर रहा है. अगर 3 ही डिजिट के एड्रेसेस हो सकते हैं तो मैक्सिमम कितने एड्रेस हो सकते हैं? 999. इसका मतलब कितने घर हैं? 999. तो मेमोरी की साइज, अब एड्रेस की साइज बस, एड्रेस बस की साइज डिफाइन कर रही है. एड्रेस बस की साइज कितनी है? 16 बिट की. तो 16 बिट की साइज है, तो टोटल कितने डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस हो सकते हैं? 2 की पावर 16. और अगर मेमोरी को देखना है, अगर हम देखते हैं कि मेमोरी कैसी होती है, तो मेमोरी इज लाइक दिस. नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8. नाउ ये एक वर्ड है, 8 बिट का है. देयर आर 8 बिट. अब इस वर्ड की मेमोरी, जो ये वर्ड है, ये किसी लोकेशन पे सेव्ड है, तो इसकी लोकेशन कैसे पता करेंगे? मान लेते हैं ये पेज नंबर 01 है और ये लाइन नंबर 1 है. सिमिलरली देयर इज अ लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4. सो इस पर्टिकुलर, ये जो पर्टिकुलर 8 बिट है, इसका एड्रेस क्या है? पेज नंबर 1, लाइन नंबर 1. अगेन फोकस, ये 8 बिट है, ये 8 बिट है. ओके, अब ये 8 बिट का डाटा है जो कि मेमोरी में सेव्ड है. हमने बताया था 8085 का माइक्रो प्रोसेसर में केवल 8 बिट का डाटा ले या दे सकते हैं. तो यहाँ पर 8 बिट का डाटा है, पर इसका लोकेशन क्या है? ये कौन सी लोकेशन पे सेव्ड है? तो फॉर एग्जांपल हम ऐसा ले रहे हैं कि उसका पेज नंबर 1 पर लाइन नंबर 1 है. ठीक है, तो अपन कैसे करेंगे इसको? सो 16 बिट है, टोटल 16 बिट है. तो उसमें जो 8 बिट होते हैं वो डोनेट करते हैं पेज नंबर को. ये एक आपके दिमाग में पिक्चर बनाने के लिए है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है. और 8 बिट बाकी के किसके लिए यूज हो रहे हैं? लाइन नंबर के लिए. ठीक है, आपने आर्किटेक्चर समझ लिया कि 8 बिट का मेमोरी में कैसे यूज करते हैं. 8 बिट के डाटा है और हर एक डाटा का अपना मेमोरी लोकेशन है. लोकेशन कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम? पेज नंबर एंड लाइन नंबर से. 8 बिट का पेज नंबर बोल देते हैं और 8 बिट का लाइन नंबर बोल देते हैं. ठीक है, तो डाटा अलग है, डाटा क्या रखा हुआ है उस पर, वो दैट इज डिफरेंट, पर उसकी लोकेशन क्या है? और टोटल कितनी लोकेशन हो सकती है? टोटल डिफरेंट लोकेशन 2 की पावर 16, विच इज इक्वल टू 64 किलो बाइट. ओके, किलो बाइट. दैट इज मैक्सिमम साइज ऑफ द 8085 माइक्रो प्रोसेसर. ओके, डाटा बस आपको पता है कि 8 बिट की होती है. Now this is a architecture. Pardon. So
यू कैन ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर क्या है। इससे पहले हमने 8085 का पिन डायग्राम देखा था जिसमें सारे पिन थे। ये आर्किटेक्चर है। एक पिन डायग्राम आपको सिर्फ बाहर से बता रहा है कि कौन सी पिन पे क्या है, केवल आपको पता होना चाहिए कि इस पिन पे ये है। पर आर्किटेक्चर आपको इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। तो मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस दिखा लेता हूँ। लाइक दिस इज एक्यूमुलेटर और दिस इज फ्लैग फ्लिप फ्लॉप। तो फ्लैग रजिस्टर एंड एक्यूमुलेटर आर वेरी इंपॉर्टेंट, वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस क्लास। नाउ दिस part is very important. These are temporary registers plus special purpose registers. Temporary registers हैं B, C, D, E, H, L and special purpose are stack pointer, program pointer. Now यहाँ पर टाइमिंग कंट्रोल किया जा रहा है। आपको बताया था कंट्रोल बस होती है जो टाइमिंग को कंट्रोल करती है। यहाँ पर इंटरप्ट्स हैं जो हमने पिन डायग्राम में देखा, जो पूरा इंटायरली एक चैप्टर डेडिकेटेड है इंटरप्ट्स को, जब हम वहाँ पढ़ेंगे। यहाँ पर हायर ऑर्डर बस, यहाँ पर डाटा बस और लोअर। सो ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर है कि कैसे एक 8085 में इंटरनली सारी चीज़ें रखी हुई है, यानी एक घर के अंदर का मकान का ये आर्किटेक्चर आपको दिखाया जा रहा है। बाहर से पिन डायग्राम बता दिया गया कि इस पिन पे ये है, इस पिन पे ये है, बट इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाया है। सो आपको ये इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत बार बनाने की। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट और ये हर साल लगभग पूछा ही गया है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स माइक्रो प्रोसेसर के लगभग जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं वो दीज आर these 5 parts. Control unit, which we have seen in earlier diagram. Now this is a control unit complete in this timing and control block. Now there is ALU, arithmetic logic unit. There are registers. These registers are used to store temporary data जो इंटरनली यूज होते हैं, जो माइक्रो प्रोसेसर यूज कर रहा है। प्रोग्रामर यूज नहीं करेगा, माइक्रो प्रोसेसर अपने काम के लिए, जैसे इंटरमीडिएट रिजल्ट को सेव करना है या उसे कोई भी काम, कोई भी डाटा उसे लगता है कि वो उसे सेव करना चाहिए। वी विल सी कि किस तरह के डाटा सेव होते हैं। हमेशा डाटा ही नहीं, कभी कभी एड्रेस भी सेव करने की ज़रूरत पड़ती है। तो वो सारी चीज़ें कहाँ सेव होती हैं, ये इंटरनली माइक्रो प्रोसेसर खुद के लिए यूज़ करता है। दीज आर रजिस्टर्स। इंटरप्ट्स होते हैं, इंटरप्ट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, और इंटरनल डाटा बस होती है। Okay, so these are 5 important parts. Moving towards first very most important, ALU. So ALU आपको पता है कि अर्थमेटिक लॉजिक सर्किट होता है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है? एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर जो भी ऑपरेशन हो रहा है, जो भी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, जो भी 8085 कर रहा है, वो सब का सब वो कहाँ कर रहा है? एक्यूमुलेटर के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्यूमुलेटर कितने बिट का है? 8 बिट का। 8, क्योंकि हमें पता है कि माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट का डाटा लेता है और 8 बिट का डाटा देता है, तो वो परफॉर्मेंस भी जो करता है वो 8 बिट पे ही करेगा। तो एक्यूमुलेटर की साइज कितनी है? 8 बिट की है। एक्यूमुलेटर कर क्या रहा है? जितना भी ऑपरेशन हो रहा है, जितना भी परफॉर्म हम कर रहे हैं अर्थमेटिक या लॉजिक ऑपरेशन, वो सब का सब कहाँ हो रहा है? एक्यूमुलेटर के अंदर हो रहा है। If I read out this definition, the LU includes a temporary register used for holding data temporarily during the execution of operation. The temporary register is not accessible by programmer. So accumulator is not accessible by programmer. हम accumulator में कुछ छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। So accumulator अपने instructions के लिए use करता है। जो भी operations perform हो रहे हैं वो सब के सब accumulator के अंदर हो रहा है। Now special general purpose register, there are 2 types of register, general purpose register and special registers. So B, C, D, H, E, H, L ये क्या है? यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है। ये सब जनरल पर्पज रजिस्टर है। रजिस्टर किस लिए यूज किए जा रहे हैं? टेम्पोररी डाटा को सेव करने के लिए या टेम्पोररी डाटा को रखने के लिए, होल्ड करने के लिए। सो वी आर यूजिंग दी 6 रजिस्टर B, C, D, E, H, L, और इन सब की साइज कितनी है? दे आर ऑफ 8 बिट।
एक्यूमुलेटर की साइज भी कितनी थी, 8 बिट की। अगर इनको कॉम्बिनेशन में यूज कर रहे हैं, यानी कॉम्बिनेशन केवल दो ही बन सकते हैं, बी का सी के साथ कॉम्बिनेशन बन सकता है, डी का ई के साथ और एच का एल के साथ। सो अगर कॉम्बिनेशन बी अकेले 8 बिट का है और अगर बी सी मिल गए तो टोटल की साइज कितनी हो जाएगी, 16 बिट की। सिमिलरली डी ई अलग अलग 8 बिट के हैं, अगर दोनों मिल गए, अगर कभी हमें ज़रूरत पड़ेगी कि हमें 16 बिट का डाटा स्टोर करना है तो हम डी ई के कॉम्बिनेशन को यूज़ कर सकते हैं, हम बी सी के कॉम्बिनेशन को यूज़ कर सकते हैं, हम एच एल के कॉम्बिनेशन को यूज़ कर सकते हैं। और यही कॉम्बिनेशन, देयर इज़ नो कॉम्बिनेशन लाइक बी डी और बी एच, देयर इज़ ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन बी सी, डी ई एंड एच एल। ओके, now moving towards special purpose registers. Now special purpose register we have studied, uh, it is accumulator. Now it is also of 8 bit, और जो भी ऑपरेशन हो रहा है माइक्रो प्रोसेसर में वो सब का सब कहाँ अंडरटेक कर रहा है, वो सब के सब एक्यूमुलेटर के अंदर हो रहा है। सो हमने देख लिया कि यहाँ पर ये जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं बी सी डी ई एच एल, इनकी कॉम्बिनेशंस भी, इनकी साइज 8 बिट है इंडिविजुअल, और जब कॉम्बिनेशन में काम करते हैं तो दीज आर ऑफ 16 बिट। एक्यूमुलेटर 8 बिट का है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स वन अदर, दैट इज फ्लैग्स। सो वी विल सी व्हाट इज फ्लैग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मार्केट एंड हर साल आता है, कॉम्पिटिशन्स में भी सबसे ज़्यादा टारगेट किया हुआ टॉपिक होता है फ्लैग। नाउ हमने आपको ये बताया कि आई थिंक इट हैंग्ड। So let me reload it. So in next lecture we will be studying about flag in continuation to this lecture.